हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में चैप्टर 2 ईदगाह जो पूर्ण हो गया था, फिर भी मैं एक बार आपको गुजराती में उसका अनुवाद करके आपको एक बार सिखा देती हूँ, ताकि अपने वर्कशीट में अगर ऐसा पूछा जाए कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए तब आपको आना चाहिए। जैसे ईदगाह जवानी तैयारी आમાં ગુજરાતીમાં જ હું તમને સમજાવી દઉં છું, આપણે હિન્દીમાં સમજી ગયા હતા કે ઈદગાહ જવાની તૈયારી છે। આખો મહિનો રોજા કર્યા પછી આજે ઈદ આવે છે, સૌના હૃદયમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ છે। ગામના લોકો ઈદગાહ જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, બાળકોમાં વધારે ઉત્સાહ છે। મહમૂદ, મોહસિન, હામિદ, નૂર વગેરે ખૂબ ખુશ છે। વડીલોને નમાઝમાં સામેલ થવાનું છે અને બાળકો મેળાની મોજ માણવાની છે। દુઃખી અમીના તો હામિદની દાદી અમીનાના દુઃખનો પાર નથી। હામિદની દાદી અમીનાને દુઃખનો પાર નથી। હામિદના મા બાપ મૃત્યુ પામ્યા છે, તે હામિદ નામનો છોકરો છે, તેના મમ્મી પપ્પા મરી ગયા છે। તો આજે ઈદનો દિવસ છે, તેમના ઘરમાં અનાજ નથી। હામિદ ઈદગાહ જવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે, તેમના ખિસ્સામાં ફક્ત 3 પૈસા જ છે, તેની પાસે જોડા પણ નથી, એટલે કે પગના ચપ્પલ પણ નથી। દાદી ચિંતા કરશે નહીં, અમીનાને ડર લાગે છે એકલો હામિદ ત્યાં ખોવાઈ જાય તો, પરંતુ હામિદ દાદીને કહે છે કે દાદીમાં તમે ચિંતા કરશો નહીં, હું સૌથી પહેલો આવીશ। તે તેના દાદીને એવું કહે છે કે તમે ચિંતા કરશો નહીં, બધાથી પહેલો આવીશ। ઈદગાહ પહોંચીને બધા ગામ લોકો વજુ કરીને બધા નમાજ પઢીને નમાજ પૂરી થતાં સૌ એકબીજાને પૂછવા લાગ્યા। ઈદના મેળામાં જાત જાતની વસ્તુઓ અને દુકાનો હતી, મનોરંજનના સાધનો હતા। બાળકો ઝૂલા અને ચકડોળમાં બેસવાનો આનંદ લીધો, પછી તેઓ રમકડા ખરીદ્યા અને મીઠાઈઓ ખાધી। હામિદ બધાથી જુદો રહે છે, તેની પાસે 3 પૈસા છે, આટલા મોંઘા રમકડા તે કેવી રીતે ખરીદે? રમકડા પણ કેવા હાથમાંથી છૂટતા ચૂર થઈ જાય, આવા રમકડાને લઈ શું કરશે? તે મીઠાઈ પણ ખરીદી શકતો નથી, તેને ખાવાનું લાલચું પણ બનવું નથી। તેને દાદીને વિચાર આવે છે કે હામિદને પોતાની દાદીનો વિચાર આવે છે કે દાદી પાસે ચીપીઓ નથી। તવા પરથી રોટલી ઉતારતી વખતે તેમનો હાથ દાઝી જાય છે, તો તે ચીપીઓ ખરીદે છે। મેળામાં જાય શું ખરીદે છે? ચીપીઓ। દાદીની આંગળીઓ દાઝશે નહીં એના માટે વિચારીને હામિદ 3 પૈસાનો ચીપડો ખરીદે છે। હામિદના હાથમાં ચીપીઓ જોઈને સૌ બાળકો તેની મજાક ઉડાવે છે, પરંતુ હામિદ પોતાના ચીપિયાના એવા વખાણ કરે છે કે સૌ ચકિત થઈ જાય। બીજા બાળકો માટેના રમકડા ખરીદ્યા હતા, ચીપીઓ તો તેનો એવો બહાદુર સિંહ હતો કે કોઈ રમકડું તેની આગળ જીતી શકે નહીં। મોહસિન તો હામિદના ચીપિયાના બદલામાં પોતાનો રમકડો આપવા તૈયાર થઈ ગયો હતો। મહમૂદ હામિદને પોતાનો દોસ્ત બનાવવાની તેને કેળું ખવડાવ્યું। હામિદ બધાની સાથે ઘરે પાછો ફર્યો, તેના હાથમાં ચીપીઓ જોઈને દાદીમાં ચમકી ગયા। તેને વિચાર્યું કે હામિદની પાસે 3 પૈસા જ હતા, તેને આ 3 પૈસામાં ચીપીઓ ખરીદ્યો એટલે તેને આખો દિવસ ભૂખ્યો રહ્યો હશે। હામિદને કહ્યું કે તેને આખા મેળામાં બીજું કાંઈ ના મળ્યું, લોઢાનો ચીપીઓ કેમ ઉપાડી લાવ્યો? તો હામિદે અપરાધી ભાવે કહ્યું કે તમારી આંગળીઓ તવામાં દાઝી જતી હતી એટલે હું ચીપીઓ ખરીદી લાવ્યો છું। હામિદનો જવાબ સાંભળીને દાદીમાં ક્રોધનો સ્નેહમાં બદલાઈ ગયો, તેનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું। તેને મુખેથી હામિદને માટે દુઆ નીકળવા લાગી, આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યો। એવી રીતે દાદીમાના પ્રેમ વિશેની આ પાઠમાં વાત કરવામાં આવી છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। क्या है? दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है, चिमटा ले जाने पर जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा खोने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। खिलौना और मिठाई खरीदने में तो पैसे की बर्बादी हो जाती है,
यह सोचकर हामिद ने और कोई चीज खरीद कर चिमटा ही खरीदा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि हामिद चिमटा खरीदने के लिए हामिद ने कौन सा कारण बताया। तो हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है, इसे कंधे पर रखो तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आगे पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इसी प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसके सर्वोपरिता सिद्ध की। उसके बाद आगे तीसरा प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तो बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तो हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। हामिद को चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद को ना समझ पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद ने त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। उसके बाद अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताएंगे। प्रश्न 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा है। इसके अलावा कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढकर पैराग्राफ पढ़ना है कि हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिवी ने पंडुप के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही हैं। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है। निराश्रित का आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वानों हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा के इसके बिना मनुष्य जीवन का सार्थक नहीं मानना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। ऐतिहासिक ग्रंथ में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं, यहाँ पे पहली लिपि में ही दिया है। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिवी के पंडुप के प्राण रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइया जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा मिलकर की। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी। तो यहाँ ऋषि मुनियों ने यह सीख दी कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों को शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखे को भोजन करवाओ। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। देश और समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। तो देश और समाज की उन्नति देश और समाज की उन्नति
इससे फकरा पढ़ के यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं तो देश और समाज की उन्नति होगी। उसके बाद है विलोम शब्द को लिखिए। आश्रित तो अनाश्रित, अवनीत तो उन्नति। उसके बाद परिचित के अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। जैसे कि भारतीय समाज में युगों से क्या प्रभावित होती रहती हैं? सभी धर्मों का मूल क्या है? परोपकार के लिए क्या क्या करते हैं? तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहां तुमने क्या क्या खरीदा और क्या देखा? यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे? ये सब प्रश्न के आपको सोचकर लिखने हैं। जैसे कि हामिद की तरफ तुम कोई मेले में गए हो, अगर आपको याद हो तो आप लोग लिख सकते हो। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह क्यों रखा गया? आप इसके अलावा क्या क्या शीर्षक देना चाहेंगे? अगर ये प्रश्न अपना बाकी था। प्रश्न 2, जैसे कि ईद को नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हें के पास साथ गया है। ईदगाह में नमाजियों का भातृत्व देखने को मिलता है। नमाज के बाद सब लोग चीज़ें खरीदते हैं, मेले में जाते हैं। मेले में विविध मनोवृत्तियाँ और दर्शन करते हैं। कहानी और मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं बताई गई हैं। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियाँ केंद्र ईदगाह। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा भी कहानी के लिए अन्य शीर्षक दे सकते हैं, जैसे कि हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा आदि। कहानी का हामिद आदर्श शीर्षक जुड़ा जा सकता है। उसके आगे रोजे स्वाध्याय। प्रश्न 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने अर्थात उपवास। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो पाठ में ही दिया हुआ है। रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? तो दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, पिस्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे हैं। उसके बाद है प्रश्न 2, निम्नलिखित समानार्थी विरोधी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे शब्द दिया है शीतल।
शीतल का समानार्थी शब्द क्या होगा? शीतल का समानार्थी शब्द क्या होगा? ठंडा। और विरोधी उष्ण। उसके बाद दूसरा है प्रसन्न। तो खुश। और खिन्न। प्रसन्न का समानार्थी शब्द है खुश और विरोधी है खिन्न। उसके बाद है गरीब। गरीब का समानार्थी शब्द दिन और दिन यानी कि गरीब और उसका विरोधी क्या होगा? अमीर। उसके बाद दिया है अंधकार। अंधेरा। प्रकाश। उसका समानार्थी शब्द होगा अंधेरा और विरोधी होगा प्रकाश। स्नेह। स्नेह का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रेम और विरोधी घृणा। एक शब्द बाकी रह गया है। पुरानी। पुरानी। तो पुरानी का पुरानी का समानार्थी शब्द है प्राचीन। और विरोधी समानार्थी शब्द पुरानी तो प्राचीन, विरोधी प्राचीन तो नई। आप लोग आपकी नोटबुक में लिख लो। उसके बाद यहाँ पे एक कहानी दी है। रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। जैसे एक नगर में दो स्त्रियां, एक नगर में दो स्त्रियां एक ही बालक के लिए आवेदन, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मुंह और दूसरी का रोकर कहना बच्चे को न काटो उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, उड़ती हुई स्त्री को बालक सौंपना। तो ये यहाँ पे कहानी है विद्यार्थी मित्रों। दो स्त्रियां हैं, किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। किसी नगर में दो स्त्रियां
पास पड़ोस में रहती थी। उनमें से एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान नहीं था। उसका कोई संतान नहीं था। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलजुल कर रहने वाली थी। उसका एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई। मौका पाकर निसंतान स्त्री ने बच्चे को पालने से उठाकर ले गई। फिर वह बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ को बहुत दुख हुआ। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया। उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। उसने कहा, उस स्त्री ने क्या कहा, ये मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर लो। ये मेरा बेटा है, मैं नहीं दूंगी, जो चाहे सो कर लो। दोनों में झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायाधीश में जाकर झगड़े का निपटारा करने के लिए बोला। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा अधिकार देकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया और इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और दोनों स्त्रियों को एक टुकड़ा दे दो। तो न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रह गई, पर जिस बच्चे की माँ थी उसने कहा, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है, तो उसकी माता को उसका बच्चा सौंप दिया। निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। आखिर सत्य की जीत होती है। जैसे कि उसका बेटा था ही नहीं, उसको मरे जिए क्या, जिस स्त्री का बेटा था उसको लगा शायद मेरा बेटा मर जाएगा, तो इसीलिए उसकी ममता ने क्या कहा, मेरा बेटा चाहे वो ले जाए पर जिंदा तो रहेगा। तो न्यायाधीश को तुरंत पता चल गया ये इसका बेटा है ही नहीं। तो जिस स्त्री ने मारने से मना किया उसी स्त्री को उसका बेटा वापिस मिल गया और उसको हिरासत में ली। इसीलिए हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो इस कहानी का शीर्षक हम दे तो क्या आएगा, सच्ची माँ। और उसके अलावा लिखना हो तो न्यायाधीश का फैसला भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्द में पूर्ण कीजिए। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च निकला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़े बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। तो यहाँ पे ये अधूरी कहानी थी, इसको पूरी करनी है विद्यार्थी मित्रों। तो गर्मी की छुट्टियाँ थी। अंकिता अपने मामा के घर मुंबई आया था। उन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था। मामा के प्रोत्साहन और सहायता से अंकित ने केबीसी के संचालकों का संपर्क किया। भाग्य से उसका साथ दिया और उन दिनों से कार्यक्रम की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिल गया। अंकित के सामने बैठे थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। उन्होंने दर्शकों को अंकित का परिचय दिया। फिर शुरू हुई प्रश्न मालिका। अंकित खुश था और घबरा भी रहा था।
लेकिन वह स्वस्थ रहा। अंकित ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने उसका साथ दिया। वह 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। अगले प्रश्न का उत्तर उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। अंकित ने गेम से क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अंकित की मां को ढेर सारे स्वेटर बनाने और अंकित की पढ़ाई का खर्चा निकालने की चिंता न करनी पड़ी। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये पाठ अपना पूर्ण होता है ईदगाह का। आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। वर्कशीट में अगर आए तो आप लोग इस तरह लिख सकते हो। उसके बाद पाठ तीसरा अंतरिक्ष स्कूलिंग सुमिता विलियम्स, जो हम अपने नेक्स्ट टाइम जब पीरियड आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगी। आज का लेक्चर मैं पूर्ण करती हूँ यहाँ पे।